नहम्याह की किताब का अध्ययन करेंगे। So, after studying the book of Nehemiah, we may have to study the book of Malachi. और नहम्याह की किताब के बाद हम मलाकी की किताब को अध्ययन करेंगे। So, once the अंकल, book of मेक मी yes, को होस्ट अंकल। pardon me. Yeah, you're मेक मी there. को होस्ट। You're there as a co-host. No, 1 minute. Yeah. So once the book of Malachi is over, we'll be completing the Old Testament survey by the grace of God. और जब मलाकी का अध्ययन हम कर लेंगे तो प्रभु की दया से हमारा पुराने नियम का सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा। So thank you for your patient listening, and you have been really very patient, and thank you for all your prayers. आप सबकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद और बड़े धीरज के साथ जो आप सुन रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। So today we are going to study the book of Nehemiah. और आज हम नहम्याह की किताब का अध्ययन करेंगे। So the Nehemiah's main theme is "Come, let us build." और नहम्याह का जो केंद्रीय वचन है, एक आओ हम मिलकर बनाएं। We have already seen in the previous Bible studies that the children of Israel, particularly the tribe of Judah, they returned from the Babylonian captivity after 70 years of their captivity. और पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो गुलामी में गए हुए लोग थे परमेश्वर के, विशेषकर यहूदा के लोग किस प्रकार 70 वर्ष की गुलामी के बाद अपने देश में वापस आए। So under the leadership of Zerubbabel and Yehoshua, you know that they have rebuilt the temple. और हमने कैसे पढ़ा था कि किस प्रकार जेरुब्बाबेल और यहोशू की अगुवाई में फिर से वे लोग मंदिर का निर्माण शुरू किए थे। So although there were few obstructions, but still they have rebuilt the temple and they have dedicated it also. और हालांकि कुछ रुकावटें जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मंदिर को बनाया और उसका समर्पण किया। In that context, we have studied the book of Haggai and Zechariah. और उसी संदर्भ में हमने हगै की पुस्तक और जकरिया की पुस्तक का अध्ययन किया। And then we have studied the book of Esther. We have studied the story how the Lord amazingly used Mordecai and Esther saved the whole tribe of Judah. Otherwise, they would have been massacred. और हमने एस्तर और मुर्देकई के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने परिश्रम किया, प्रार्थना किया और उसके कारण पूरी यहूदी जाति जो है नाश होने से बच गई। And we have also seen the second part of Ezra, and then how Ezra brought great revival. Ezra, he beautified the house of the Lord. और इज़रा की किताब के दूसरे भाग को भी हमने पढ़ा कि कैसे इज़रा के द्वारा जागृति आई और उन्होंने भवन को संवारने में काम किया। So after the Ezra, Nehemiah comes into the picture. और इज़रा के बाद नहम्याह की सेवकाई को हम देखते हैं। So you know that BC, before Christ, 520 almost at that time, the temple was rededicated and it was built by the Zerubbabel and Yehoshua. और हमने जब देखा था कि 520 ईसा पूर्व मंदिर का निर्माण किया गया था, उसका फिर से पुनः और समर्पण किया गया था और उसमें जरुब्बाबेल और यहोशू ने काम किया था। Yeah. So and then it was spiritually raised this structure and then beautified by Ezra. और हमने देखा था कि इसके आत्मिक स्वरूप को इस भवन के संवारने के लिए किस प्रकार एज्रा ने काम किया था। But still things are not proper and they did not learn the lessons properly. लेकिन फिर भी वे लोग अपने व्यवस्थित रूप में नहीं आए थे और उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी था। Now comes the Nehemiah into the picture. और तब हम नहम्याह की मौजूदगी को देखते हैं। If you give one line summary for the book of Nehemiah, you can simply say that Nehemiah 2:17, come let us rebuild. और अगर नहम्याह को हम पूरी किताबों के एक लाइन में स्मरण करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आओ हम बनाएं। And the book of Nehemiah can be divided into 3 parts. और नहम्याह की किताब को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। Chapter 1, news about the wall and the response of Nehemiah, and chapter 2 to 12, Nehemiah had a vision
and according to the vision, he had a mission, and he executed that mission from chapter 2 to chapter 12. And chapter 13, there were few disorders, and Nehemiah fixed them. और नेहमिया के अध्ययन के लिए हम नेहमिया की किताब को 3 भागों में बांट सकते हैं। भाग 1 जिसमें पहला अध्याय है, और जिसमें हम जो टूटी हुई शहरपनाह के बारे में सूचना हम मिलते हुए नेहमिया को देखते हैं और उसके प्रतिक्रिया को देखते हैं। दूसरे भाग में नेहमिया 2 अध्याय से 12 अध्याय के बीच में हम नेहमिया के दर्शन को और उसके योजना को देखते हैं जो उन्होंने इसे पूरा करने के लिए बनाया था। और नेहमिया के तीसरे भाग में हम 13 अध्याय को देखते हैं जिसमें जो उन्होंने अव्यवस्था थी उसको सही किया था। So Nehemiah means Jehovah comforts. और नेहमिया का मतलब होता है यहोवा जो सहारा देता है। Probably this book of Nehemiah was written by Ezra. और ये जो नेहमिया की किताब है वो जहाँ तक एजरा ने लिखा है। And Nehemiah was the cupbearer to Persian king Artaxerxes, who ruled from 464 BC to 424 BC. और पर्शियन के राज्यों में जो अर्थशक्त राजा थे वो उनके समय में जो 466 से 424 ईसा पूर्व का समय था, उस समय ये नेहमिया उनके लिए एक पियाऊ का काम करते थे। So he came to Jerusalem perhaps 444 BC, and he was there till 433 BC. We find it from chapter 1 to chapter 12. और 1 अध्याय से 12 अध्याय के बीच में हम देखते हैं जो कि 444 से 433 ईसा पूर्व का समय था। इस समय जो वो यरूशलेम के लिए पहले गवर्नर के रूप में थे। He returns again to Babylon, and then he comes again second time in 442 BC. He was there till for about 400 BC. We find that in chapter 13. तो ये यरूशलेम में उनके दूसरे एक प्रकार के आने को दिखाता है अंकल जी। What that means? No, there was a gap of almost all 11 years from 432 to 442, 11 years from chapter 12 to chapter 13. And within that gap, he returned to his job. He worked there maybe for about 9 years and again come back. ओके और हम देखते हैं कि लगभग 11 वर्षों के बाद में जो 12 अध्याय और 13 अध्याय के बीच में हैं, वो दोबारा से अपनी जो काम कार्य करते थे उस सेवा में वो वापस आए। So the book of Nehemiah is supposed to be a wonderful book about leadership. और नेहमिया की जो किताब है वो एक बहुत सुंदर किताब है अगुवेपन को या नेतृत्व करने वाले को दिखाने के लिए। So whenever church leaders or any Christian leaders they gather together, they derive many principles from this book of Nehemiah. और इसलिए बहुत सारे कलीसिया के अगुवे जब इकट्ठा होते हैं तो नेहमिया की पुस्तक से बहुत सारे वे शिक्षा वो ग्रहण करते हैं। Not only Christian circles, even from secular circles, those who are aware and those who are, read the Bible, they also take, many principles from the Bible, and they make a lot of money out of it. और इसके अलावा जो संसार के बाकी लोग भी हैं वे लोग भी कई बार बाइबल के सिद्धांतों को उपयोग करते हैं और उसके द्वारा बहुत धनी हो जाते हैं। I have already told you when we were studying Exodus about the father-in-law of Moses, Jethro. So even today, there are many books written on Jethro's philosophy. और जैसे कि हम निर्गमन की किताब में जब पढ़े थे तो मूसा का जो ससुर था जिनका नाम यित्रो था, उनके भी जो शिक्षा थी, फिलॉसफी थी, उस पर भी आधारित बहुत सारी किताबें बनी हैं। The tragedy part is, but many Christians don't learn these wonderful lessons we find in the book of Nehemiah. परंतु दुख की बात यह है कि हमारे कई बार मसीही भाई बहन लोग ही इसमें जो नेहमिया की किताब में लिखी हुई महत्वपूर्ण बात को नहीं समझ पाते हैं। I also did not know for quite some time. When I come to know, I was amazing to myself. How come I did not read my Bible properly and spent many years? There are certain wonderful, principles and wonderful instructions for leadership was given. Although I was a church leader,
I did not know all that. But after studying the book of Nehemiah, after I heard the studies about book of Nehemiah, I was so blessed. और मैं भी बहुत आश्चर्य होता हूँ कि मैं भी पहले इस नेहमिया की किताब के बारे में कुछ समय तक नहीं जाना, परंतु बाद में मैंने जब इसे अध्ययन किया तो इसके सिद्धांत और इसके नियमों को देखा जो इतने अच्छे और सुंदर हैं, जो अगुओं को तैयार करने के लिए लिखे गए हैं, और इसको पढ़ने के बाद हम बहुत ही आशीषित हुए हैं। Nehemiah chapter 1. नेहमिया की किताब पहला अध्याय। Let me read it for you from the beginning onwards. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah. It came to pass in the month of Chislev, in the 20th year, as I was in Shushan the citadel, that Hanani, one of my brethren, came with men from Judah, and I asked them concerning the Jews who had escaped, who had survived the captivity, and concerning Jerusalem. And they said to me, the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down, and its gates are burned with fire. So it was when I heard these words, up to verse 4, the first part. और नेहमिया एक अध्याय और 1 से लेकर 4 वचन। कल्याह के पुत्र नेहमिया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूटे थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी ही दुर्दशा में पड़े हैं, और उसकी बड़ी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनकर ही मैं बैठकर रोने लगा। Someone came to him, and he inquired about his own people at Judah. They gave him some information. और यहाँ लिखा है कि कुछ लोग थे जो जिन्होंने आकर उनके पास जानकारी दिया कि जो लोग यहूदा के लोग हैं और यहूदा से आए हुए हैं, उनकी दशा कैसी है। So this even chapter 1 verse 3 and 4, especially verse 4, is a very interesting statement. There it is written that when I heard these words. और यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो संदेश 3 और 4 वचन में लिखा और चौथे में लिखा, ये बातें सुनते ही। That I sat down and wept and mourned for many days. यहाँ लिखा है कि मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन विलाप करता रहा। I was fasting and praying before the Lord, before the God of heaven. और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कह के प्रार्थना करता रहा। Why was he so burdened? और इनके जीवन में इतना बोझ क्यों था? Or he heard something. What is that something? और उन्होंने क्या सुना था? Verse 3, the survivors who are left from the captivity in the provinces are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down, and its gates are burned with fire. और उन्होंने ये सुना था कि जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। In fact, what he should have said is, "Achha hua, they rebelled against God. God taught them a good lesson." He should have told like that, right? प्लीज रिपीट एंगल। Nay, when he heard that the people of God are, in great distress and reproach, and the wall of Jerusalem was broken down and its gates were burnt with fire, because God brought judgment upon them because of their disobedience. ओके, तो यहाँ पे ये सब चीज सुनने के बाद नेहमिया को ये कहना चाहिए था कि ये तो सही हुआ है, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की दृष्टि में अनाज्ञाकारी लोग थे, इसलिए ये जो शहरपनाह टूट गई और ये परिस्थिति आ गई, ये तो सही हो रहा है, उसको उनको ऐसा कहना चाहिए था। Because he was there in the first lot. We have already studied that the captivity was taken in three phases. In the first phase, BC 606, he was carried to Babylon. और जानते हैं कि जो तीन जो चरण में जो बंधुआई में लोग गए थे, और ये जो 606 ईसा पूर्व में जब ये बंधुआई में गए थे, उस समय नेहमिया मौजूद था। In the second trip, Ezekiel and some of them were taken as captivity. और दूसरे चरण में जब लोग गुलामी में गए, उस समय यहेजकेल और कुछ भविष्यवक्ता साथ में थे। In the third time, then the king of Babylon burned the Jerusalem with fire, and then
he pulled down all the, the temple brick by brick, so that it was down to the earth. और तीसरे जो अबार की जो आक्रमण थी, उसमें राजा जो है बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम को और यरूशलेम के मंदिर को आग से नष्ट कर दिया, और ईंट पर ईंट भी न छोड़ी गई, वो सब नष्ट हो गया। It's all 70 years back story. और ये 70 साल पहले की घटना थी। You should have taken it light, no? You should have said, it's okay, what to do, we deserve it and God judged. It happens like that, you should have taken it lightly. और इस 70 वर्ष की पहले की घटना के बारे में जब ऐसा नहमिया को सुनना है, तब उनको सुनने से बल बोलना था कि चलो कोई बात नहीं, अब ये तो पुरानी बातें हैं, और उन्होंने अनाज्ञा कार्य की थी, इसलिए तो परमेश्वर का न्याय उन पर आया, ऐसा नहमिया को बोलना चाहिए था। Was so sensitive when he heard the Bible says that he sat down, he wept and mourned for many days. परंतु यहाँ नहमिया की विषय में लिखा है कि वो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे, और उनके जीवन में एक संवेदना आई, और वो सुनकर लिखा है बैठ के रोने लगे और बहुत दिन तक विलाप करते रहे। Why is it necessary? Yeah, you're at peace and you're enjoying a wonderful and elevated role in the palace of a king. What happened to you? You're all fairly good, no? Why are you so bothered about them? और देखते हैं नेहमिया को तो बड़ी शांति से वो जी रहा था, राजमहल में बहुत एक अच्छे पद में काम कर रहा था, तो यहाँ तो उसको बहुत बिना चिंता किए बहुत अच्छे से जीना चाहिए था। But his answer was totally different. When he heard that, he sat down and wept and mourned for many days. And it also says that, and he fasted and prayed before the Lord God of heaven. और यहाँ लिखा है कि ये बातें सुनकर वो बैठ कर रोने लगा और कितने दिन तक उपवास करता रहा, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और प्रार्थना करता रहा। वो उपवास और प्रार्थना करना शुरू किया। When I was examining myself, I was also, shameful, and I also felt very, very uncomfortable. I felt that maybe I'm very hard person. I'm not responding the way how Nehemiah responded. और जब ये मैं किताबें पढ़ा और समझा, तो मुझे बहुत लज्जा आई कि मैं नेहमिया के समान नहीं हूँ, जो अच्छी रीति से इन चीज़ों को समझकर प्रतिक्रिया दे पाता। ऐसा मुझे पढ़कर लज्जा हुआ। When you have your belonging with your own brothers and sisters, if something happens to them, it happens to you as if it happens to you, and then you weep and wail and go to the Lord. और यहाँ पे प्रियो, जैसे लोगों के साथ हुआ है, वैसे ही हम ये समझना है कि जैसे हमारे भाई और बहनों के साथ ये हुआ है, और उसको ऐसा समझकर हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए, उनके सामने रोना चाहिए। God saw him and perhaps God called him with a purpose. और परमेश्वर ने नेहमिया को देखा और उसे एक उद्देश्य के साथ बुलाहट दिया। See, David was called a man after the own heart of God. और दाऊद के हम जानते हैं कि दाऊद के लिए कहा गया था कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति है। You know why it is said so? और ऐसा आपको मालूम है क्यों कहा गया था? If you read the book of Psalms, you understand the heart of David. और आप जब भजन संहिता पढ़ेंगे तो आपको दाऊद के हृदय का पता चलेगा। When we read the Psalms, we not only find the heart of David, we find the heart of God. और भजन संहिता पढ़ने से ना केवल हमें दाऊद का हृदय, परंतु परमेश्वर का हृदय का भी पता चलता है। With whom God was so angry, David was also angry. With whom God was happy, even David was also happy. So, a man after the own heart of God means man should respond the way how God reacts, God feels. और जो परमेश्वर के मन के अनुसार उस व्यक्ति है, उसका मतलब यही होता है कि जब परमेश्वर क्रोध करे तो वो मनुष्य भी क्रोध करे, और परमेश्वर जब खुश हो किसी चीज से तो वो मनुष्य भी उस चीज से खुश हो। अर्थात परमेश्वर के हृदय के अनुसार जो एक मनुष्य प्रतिक्रिया और देता है, महसूस करता है, उसे हम कहते हैं कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति है। A leader, when he sees the crisis around him, a leader, when he sees the great problem around him, he will not accuse, he will not complain, he will not, look for the loopholes to throw blame on somebody. और एक अगुआ जो है अपने चारों ओर जब कठिनाई को देखता है, समस्याओं को देखता है, तो उस समय वो शिकायत करने वाला या ये इन समस्याओं को दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के लिए थोपने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए।
That leader, when he finds the crisis around him, he will decide to do something for it. और अब जब अगुआ एक समस्या और कुछ परिस्थितियों में फंस जाए तो उसे कुछ विशेष कार्य करने के लिए एक निर्णय लेना चाहिए। My dear brothers and sisters, there are many managers, but there are not many leaders. प्रियो, इस दुनिया में बहुत सारे प्रबंधक जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे अगुवे बहुत कम हैं। The Lord is looking for leaders. और परमेश्वर अगुवों को ढूंढता है। When Egypt was suppressed, was going through lots of slavery, God was looking for someone. God found David, but it took for about 430 years. और हम देखते हैं कि मिस्र में कैसे गुलामी की दशा थी लोगों की, और परमेश्वर ने लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र में मूसा जैसे व्यक्ति को तैयार किया। लेकिन हम देखते हैं कि कितने दिनों के बाद, लगभग 430 वर्षों के बाद, A leader who responds to the heart of God goes to the Lord and says that, here I am, willing to serve you. Tell me, what should I do? That's how he prays. और एक अगुवा वो होना चाहिए जो परमेश्वर के हृदय को समझे और परमेश्वर के निकट आके कहे कि मैं हूं आपके सामने परमेश्वर, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपके लिए क्या करूं, ऐसा बोलने वाला होना चाहिए। Easy to find loopholes, easy to, make so much of discussion, easy to throw blame on someone, easy to accuse someone, and easy to murmur and grumble. और बहुत आसान है प्रियो किसी की गलती निकालना, या फिर किसी समस्या पे बातचीत करना, या दोषारोपण करना, या गुड़गुड़ाना और बुड़बुड़ाना बहुत आसान है। But it's not easy to say that, Lord, here I am. Tell me, what should I do? I will do something for it. I find the crisis. I want to do something, but I don't know how to do it. But you please tell me how I should do it. और परंतु उसकी जगह ऐसे लोग होना चाहिए अगुवे, जो परमेश्वर के पास आके कहें कि मैं हूँ परमेश्वर, मुझे क्या करना चाहिए, इस समय मैं क्या करूँ, मैं उस सच्चाई को ढूंढूंगा, मैं उस काम को करूंगा जिसे तू करने के लिए कहेगा। We find burden in his heart. हम देखते हैं कि नहम्याह के हृदय में हम एक बोझ को देखते हैं। That is that is because he had a call. That is because he has a call from the Lord. God calls his people to do something for him. और ये बोझ नहम्याह के हृदय में क्यों था? क्योंकि उसे बुलाहट मिली थी, और परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो बुलाहट होती है वो उन्हें कुछ करने के लिए मजबूर करती है। God is in the process of recruiting people to handle the crisis. Recruiting people, those who can rebuild even when foundations fall. और परमेश्वर को समस्याओं के बीच में लोगों का समाधान करना चाहते हैं, और उस टूटे हुए चीजों को, जिसकी नींव नष्ट हो गई, उसे फिर से बनाना चाहते रहते हैं। God calls people, और इसलिए परमेश्वर कुछ लोगों को बुलाते हैं, and they will have burden, and they will intercede with the Lord. और ये होते हैं जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया, वो बोझ रखते हैं और मध्यस्थता का काम करते हैं। Prayer is a general word, और प्रार्थना एक सामान्य शब्द है, but whereas intercession is something which is being prayed for others' good. और जब हम मध्यस्थता की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने वाला। Then prayer should always, or intercession should always begins with confession. और प्रार्थना और जो मध्यस्थता की प्रार्थना है वो हमेशा एक अंगीकार से शुरू होनी चाहिए। Verses 5 to 11, we find amazing prayers. और 5 से लेकर 11 वचन तक हम देखते हैं कि सुंदर प्रार्थना हम यहाँ देखते हैं। If you wanted to be a prayer warrior, please learn how the great servants of God prayed in the scripture. और अगर आप प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं तो आप जरूर बाइबल में से उन महान योद्धाओं को देखिए, परमेश्वर के नबियों को देखिए जिन्होंने सुंदर प्रार्थना की है। Many people are God, busy praying for my stomach pain, my headache, my office problem, my children problem, my promotion problem, my problem, this and that, all the time problem, touch me, heal me, and protect me. Such kind of prayers only, filled with the churches and families. आज हम देखते हैं प्रियों की कलीसियाओं में इस प्रकार की प्रार्थना की, जिसमें पेट दर्द, सिर दर्द की प्रार्थना कराना, और अपने बीमारी के लिए, बच्चों के लिए, अपनी उन्नति के लिए, और मेरे लिए, इसके लिए, उसके लिए, या फिर इसको छू लो, उसको चंगा कर दो, इन्हीं प्रकार की प्रार्थनाओं से कलीसिया घिरी हुई है। I'm not saying that don't pray such prayer. Yes, we need to pray for each and everything.
but not always the same prayer, you know. और मैं ये नहीं कहता कि इन बातों के लिए प्रार्थना नहीं होना चाहिए, सब बातों के लिए प्रेयर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर समय इसी के लिए प्रेयर करना है। But when you make a list of your prayers, the hitting, the top priorities of the prayers definitely must be according to the scriptures. और जब आप प्रार्थना का एक लिस्ट बनाते हैं, तो बिल्कुल ये होना चाहिए कि जो प्राथमिकता है आपकी प्रार्थना की, शुरुआती प्राथमिकता, वो वचनों पर आधारित होना चाहिए। When you carefully observe how the servants of God prayed, when you pray like that, how God has answered them, I believe He will definitely answer, because we need to pray according to the scriptures. और हम जब वचनों का विश्लेषण करके प्रेयर करना शुरू करेंगे, तब हम देखेंगे कि जिन लोगों के लिए वचन में प्रभु ने प्रार्थना सुना है और उनका उत्तर दिया है, तो जरूर The हमारे जीवन में भी उसके द्वारा परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा और उत्तर देगा। The text is so clear, I don't need to explain much. As we simply keep reading, you'll be able to get it. और वचन इतना स्पष्ट है जिसे हम पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। Verses 5 to 11. And aside, I pray, Lord God of heaven, great and awesome God, you who keep your covenant and mercy with those who love you and observe your commandments, please let your ear be attentive and your eyes open, that you may hear the prayer of your servant, which I pray before you now, day and night, for the children of Israel, your servants, and confess the sins of the people of Israel, which we have sinned against you. Both my father's house and I have sinned. We have acted very corruptly against you, and we have not kept the commandments, the statutes, the ordinances which you commanded your servant Moses. Remember, I pray, the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the nations. But if you return to me and keep my commandments and do them, though some of you were cast out in the farthest part of the heavens, yet I will gather them from there and bring them to the place which I chosen as a dwelling for my name. Now, these are your servants and your people, whom you have redeemed by your great power and by your strong hand. O Lord, I pray, please let your ear be attentive to the prayers of your servant, and lo, the prayer of your servants who desire to fear your name, and let your servant prosper this day. I pray, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. और यहाँ सुंदर प्रार्थना नेहमिया की किताब अध्याय 1 का 5 से लेकर 11 तक की ये लिखा है। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंख खोले रहा कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, तू उसे सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उसको हमने नहीं माना। इस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथों के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। He begins with praise and worship. और यहाँ हम देखते हैं कि आराधना और धन्यवाद के साथ वो प्रार्थना शुरू करते हैं। And then he quotes the promise that is there in the scripture. और वो वचन में जो वादा किया गया है, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, उसे वो याद करते हैं। And then he confesses the sins of his family and also all people of Judah, how they have transgressed God, how they rebelled against God, how they sinned. And he says that God is righteous by punishing them according to his word.
और वो जो है अंगीकार करते हैं, और वो अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपने परिवार का, साथ में पूरे यहूदा के लिए उनके अधर्मों और पापों का अंगीकार करते हैं, और अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर कैसे धर्मी है, जो उनके उनके ऊपर न्याय किया। And then verse 6, last part, you see, uh, uh, confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against you, both my father's house and I have sinned. और छठवें वचन के अंतिम में जो उन्होंने प्रार्थना किया कि मैं इज़राइल के पापों को, साथ ही अपने पापों को और अपने पिता के पूरे घराने के पापों को मान लेता हूँ। And then verse 7, we have acted very corruptly against you and have not kept the commandments, the statutes, nor the ordinances which you commanded your servant Moses. और सातवें वचन में उन्होंने कहा कि हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। And then verse 8, he says that you are faithful, you punished us, you scattered us because we disobeyed you. और 8 वचन में उन्होंने कहा कि तूने अपने दास से जो कहा बिल्कुल सही कहा कि तो हम लोगों ने विश्वासघात किया, इसलिए तुमने हमें देश देश में तितर बितर कर दिया। He claims the later part of the promise, saying in verse 9, if we come back to you, if we repent at your feet, and you said you will again gather us, you will again rebuild us. And lo, here I am on behalf of your people. Please hear my prayer. That was the prayer of Nehemiah. और निम्न ने 9 वचन में बहुत सुंदर प्रार्थना किया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की ओर फिरना है, उसकी आज्ञा मानना है, और जरूर वो परमेश्वर फिर से हमें इकट्ठा करेगा और उस स्थान में हमें फिर से पहुंचाएगा जिसके लिए उन्होंने निवास बनाने के लिए हमें चुन लिया है। And the last part of his prayer is 11th verse and the later part. There he says, uh, uh, your servant prosper this day, I pray, and grant him mercy in the sight of this man. और 11वें वचन में वो महत्वपूर्ण विनती करते हैं और कहते हैं कि अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, तू कान लगा ले, प्रार्थना सुन ले। That means he is praying for the king. He is planning. He is planning to go and see him and then, talk about this. And he is praying before the Lord. और वो प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि वो राजा के पास जाने वाले थे इन सारे विषयों के लिए बात करने के लिए, इसलिए उसके जाने से पहले ये प्रार्थना कर रहे हैं। Because these people of Israel, they are always in touch with the law of the Lord. और चूंकि ये जो परमेश्वर के लोग हैं, ये हमेशा परमेश्वर के प्रेम करने के लिए जो है जुड़े रहते हैं। They keep verifying the history and then compare the scripture, what God said. और ये सभी जो लोग हैं परमेश्वर के, वो इतिहास को जानने वाले लोग थे और परमेश्वर के वचन के तुलनात्मक अध्ययन करने वाले लोग थे। Nehemiah is well aware what happened to Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. और जो नहम्याह था वो विशेष रीति से ज्ञाता एक व्यक्ति था, जो दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो की पूरी विषय को जानता था। He is well aware about the king Nebuchadnezzar, what happened to him, how God taught him a lesson. और वो नबूकदनेस्सर राजा के बारे में भी सब बातें जानते थे, वो एक अच्छे जानकार थे, उनके पूरी बातों को जानते थे। He also knew the story of Esther and Mordecai because they refer history and they are well thorough how God has been working according to his plans and purposes. और वो एस्तर और मोर्देके के बारे में भी अच्छे से पढ़े थे, अच्छे से उस विषय में ज्ञाता थे, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर अपने उद्देश्य के लिए कैसे लोगों को इस्तेमाल करता है। He knew that when we pray, God can even move the hearts of the kings. God moves kings and God accomplishes his purposes in a very providential way, not necessarily always by miracles. और नहमिया अच्छे से जानते थे कि परमेश्वर राजाओं के हृदय को मोड़ सकता है नालियों के समान, और वो जानते हैं कि हमें इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, हर बार चिन्ह चमत्कार के विषय के लिए दुआ नहीं करना चाहिए। So, chapter 2 and verse 1. और दूसरा अध्याय का पहला वचन। And it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, that I took the wine and gave it to the king. Now I had never been sad in his presence before.
और दूसरे अध्याय के पहले वचन में लिखा है, अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के सिसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। So when he received the message from his friends, we find it in chapter 1 and verse 1. 20th year, as I was in the month of Chislev. In the month of Chislev, he received the message. He started praying for it. और यहाँ पहले अध्याय के पहले वचन में जैसे लिखा है कि 20वें वर्ष के किसलेव नामक महीने में अपने दोस्तों से उन्होंने इस विषय के बारे में सुना था और प्रार्थना शुरू किया था। And verse 4, chapter 1 says that he mourned for many days. और पहले अध्याय के 4 वचन में लिखा है कि वो बहुत दिन तक रोते रहे, विलाप करते रहे। And he also said that he was in fasting and praying. और ये भी लिखा है कि उपवास कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। And chapter 2, verse 1, it is in the month of Nisan. और दूसरे अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि उन्होंने निसान नामक महीने में ये घटना हुई। So please find Israel calendar. I kept it on the slide. From Kislev to Nisan, there are 4 months of gap. Chapter 1, verse 1, Kislev, and chapter 2, verse 1, Nisan. So between these 2 months, there are 4 months gap. और जैसे कि आप इजराइल के कैलेंडर को सामने देख रहे होंगे, और यहाँ किस्लेव नामक महीने के से लेकर निशान नामक महीने के बीच में लगभग 4 महीनों का या 3 महीनों का गैप है। That means he took a break of 4 months just to pray and wait upon the Lord. Amazing man of God. इसका My मतलब है dear कि brothers and sisters, have you any time taken leave so that you will spend time with the Lord? और यहाँ पे हम देखते हैं कि नेहमिया ने लगभग 4 महीने का समय लिया था इस प्रार्थना में बिताने के लिए। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि क्या आप कभी छुट्टी का समय लेते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेयर के लिए बैठने के लिए? A man who is called with a purpose, I'm repeating, please remember, a man who is called to serve the Lord with a particular purpose, he will spend enough time at his feet, fasting and praying with lots of burden. और प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाहट दी है अपनी योजना और अपनी सेवा के लिए, उसे उस सेवा और योजना से को पूरा करने से पहले बहुत दिन एक बोझ के साथ उपवास प्रार्थना में बैठना चाहिए। A leader whom God uses, we find that number 1 is call and number 2 is intercession. तो जिस अगुवे को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए बुलाते हैं, उसकी जिम्मे पहली चीज हम बुलाहट को देखते हैं और दूसरा मध्यस्थता को देखते हैं। When I say leader, don't ever normally take it granted that a leader in the church, not necessary. A leader in a secular field, a leader in an institution, a leader in a government sector, anywhere, and when you are leading people, you are a leader, right? And then this message is for you. और अगुवे का मतलब केवल चर्च में जो अगुवाई करते हैं वही नहीं, परंतु इस संसार के फिर क्षेत्र में कोई अगुवाई करने वाला, किसी संस्था में कोई अगुवाई करने वाला, या किसी शासकीय कार्यालय में कोई अगुवाई करने वाला, या कुछ लोगों की झुंड में अगुवाई करने वाले लोग भी इसके अंतर्गत आते हैं। Who he goes to the king, chapter 2, verse 1. और यहाँ लिखा है, उन्होंने राजा के पास गया, अध्याय 2 वचन 1। In the first verse we have read, in the last part, there it was written, now I had never been sad in his presence before. और दूसरे अध्याय के पहले वचन के अंतिम भाग में लिखा है कि इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। Because for about 4 months he was fasting and praying. Automatically, his face must have shrunk and he must have seemed very weak and, very sickly. और यहाँ 4 महीने का समय हो गया है कि ये उपवास और प्रार्थना में लगे हुए हैं, और इनके चेहरे में काफी कमजोरियां दिखने लगी है, और ये बहुत ही ऐसी कमजोर अवस्था में राजा के सामने नजर आ रहे हैं। So this statement speaks volume. What he says, now I had never been sad in his presence before. और उन्होंने कहा कि इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। That means whenever he goes to office, he goes with a cheering face. He goes with a healthy atmosphere. People won't say that is something wrong with you. और इसका मतलब है कि इससे पहले जब भी वो कार्यालय में जाते थे बहुत आनंदित रहते थे,
और बहुत ही एकदम स्वस्थ वातावरण में रहते थे, और उसको उनको लोग देखकर कभी भी कुछ भी ये सवाल नहीं करते थे। A believer, a Christian, is supposed to rejoice because of the joy of salvation. The greatest joy is the joy of salvation. We may have a number of problems around us, a number of family matters, a number of health issues, but the because of the joy of the Lord that springs from the inner bellies of our heart, that should make our face shine. और प्रियो, हम जबकि एक विश्वासी की बात करते हैं, एक एक क्रिश्चियन व्यक्ति की बात करते हैं, उनके पास सबसे बड़ा खुशी होता है, और वो होता है उद्धार का हर्ष। उद्धार पाने की खुशी उनके जीवन में होती है। भले उनके जीवन में समस्याएं कई रहे, शरीर में कई प्रकार की बीमारी और कई प्रकार की रुकावट रहे, फिर भी उनके जीवन में उद्धार के हर्ष होने के कारण और प्रभु में आनंदित रहने के कारण उनके चेहरे में एक चमक होती है। My dear brothers and sisters, there are many things world may give. World may give riches, world may give pleasures, and world may give entertainments, and world may give so many things. But there are few things world, our friends, our money, our status, our influence cannot give. Only God will give. और प्रियो, संसार बहुत कुछ हमें देता है, धन, खुशी, मनोरंजन और बहुत कुछ ऐसी बातें देता है, परंतु संसार में कुछ बातें ऐसी भी है जो चाहे हमारे कितने भी दोस्त हों, हमारी जो पद है, जो हमारी जो प्रतिष्ठा है, ये कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन उसको हम केवल परमेश्वर के द्वारा ही पा सकते हैं। Let me repeat. There are few things which we find only with God, a living God, a God of the Bible, the Lord Jesus Christ. और प्रियो, मैं एक बार वो फिर से दोहरा दूं कि हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी है जिसको हम केवल जीवित परमेश्वर से, बाइबल के परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह से ही पा सकते हैं। Someone rightly said, we can buy medicine, but we cannot buy health. और हमने किसी से सुना है, किसी ने कहा है कि हम दवा तो खरीद सकते हैं लेकिन चंगाई खरीद नहीं सकते। We can buy books, but we cannot buy intelligence and wisdom. और हम किताबें तो खरीद सकते हैं लेकिन बुद्धि और ज्ञान नहीं खरीद सकते। We can't buy joy and happiness. और हम खुशी और आनंद को नहीं खरीद सकते। You can have some kind of entertainment. It may be for few minutes or few hours, but the real joy is the joy of salvation, our sins forgiven, and something what God only view, that nobody can rob, that nobody can disrupt, that nobody can steal. और प्रियो, मनोरंजन बहुत ही संसार का जो रहता है वो बहुत ही मिनट का, कुछ ही घंटों का समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे जीवन में जो उद्धार का हर्ष होता है, जो पापों की क्षमा पाने का आनंद होता है, वो हमेशा के लिए होता है। परमेश्वर हमें कोई ऐसी चीज, कुछ ऐसी चीजें देते हैं जिसे संसार का कोई भी चोर या डाकू चुरा नहीं सकता है। Let me ask you a question. Do you work, do you do your job joyfully? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या अपनी जो आप नौकरी करते हैं, कार्य करते हैं, क्या वो खुशी से करते हैं? When you go to your workplace, do you go rejoicingly? Can people look at you? They really cherish you and they really be happy, or they don't want to see your face? और जब आप कार्यालय जाते हैं अपने, तो लोग आपको देखते हैं कि आप आनंद से जा रहे हैं, इसी प्रकार देखते हैं, या फिर आप आनंद से कार्यालय नहीं जाते हैं? Though chapter 2, verse 1, last part tells me that Nehemiah was always cheerful, always happy in his work. And because of his work, maybe I will add a word that he was a blessing to the king. और यहाँ पे जो दूसरे अध्याय के पहले वचन के अंत में लिखा है, इसका मतलब है कि राजा के सामने वो कभी भी उदासी के साथ नहीं जाता था। इसका मतलब है कि वो हमेशा एक आनंदित रूप में राजा के सामने सेवा करता था। इसका मतलब है कि राजा के लिए भी वो एक आशीषित व्यक्ति था। The position in which Nehemiah is playing as a cupbearer, it is a very highly confidential position. और ये जो 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 पिलाने हारे की जो सेवकाई हम बोलते हैं, राजा का प्याऊ होना, ये वास्तव में एक बहुत ही ऊंचे पद की और एक संवेदनशील एक सेवा थी राजा के प्रति। Because this particular position, a very, very trustworthy position, whatever the cupbearer gives, king takes it out of faith, not all will get that. Only a person of trustworthy will be given that particular position. Nehemiah enjoyed that position.
और यहाँ पे हम देखते हैं कि नेहमिया की जो जॉब थी, कार्य था, वो बहुत ही विश्वास योग्यता की कार्य था, क्योंकि जो कुछ वो पीने के लिए राजा को देता है, राजा उसको विश्वास के साथ पी लेता है। इसका मतलब उसे बहुत ही विश्वास योग्य व्यक्ति होना पड़ेगा उस कार्य के लिए। Please remember in those days, kings were monarchs. They are sovereign monarchs. Whoever appears in the king's presence, their face speaks volumes. Please repeat uncle what that means. So, in the king's presence, people are not supposed to be sad. They should be happy because it communicates volumes. So और if suppose Nehemiah being a cupbearer, if he is not happy, that he is communicating to the king saying that there is some danger is awaiting for you. और हम देखते हैं कि राजा जो होते थे वो बहुत ही जैसे उच्च कोटि के एक भय योग्य व्यक्ति हुआ करते थे। उनके सामने किसी को जाना है तो बड़ी खुशी से जाना पड़ता था। उनके सामने अगर कोई दुख में या निराशा में जाता था तो उनके लिए खतरा भी महसूस हो सकता था। So that's the reason why king immediately responded, verse 2. Therefore the king said to me, why is your face sad, since you are not sick? This is nothing but sorrow of the heart. So I became dreadfully upright. और इसीलिए यही कारण है कि राजा ने उसे पूछा, दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। Please remember, in those days, going to the presence of king is not ordinary thing. और इस बात को अच्छे से समझिए कि उन दिनों राजा के सामने जाना एक साधारण बात नहीं थी। We have already seen when we studied the book of Esther, unless king calls, no one can enter into the presence of king. और हमने राजा एस्तर की किताब से पढ़ा था कि राजा जब तक किसी को आज्ञा ना दे उसके कोई उसकी मौजूदगी में जा नहीं सकता था। People cannot speak just like that. They have to calculatedly speak and two more, one less. और यहाँ हम देखते हैं कि राजा के सामने कुछ भी कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता था, परंतु बहुत कम और सोच समझ के साथ राजा के सामने बात किया जाता था। Here, the Nehemiah was afraid, he was dreadfully afraid, verse 2 and last part of it. और दूसरे अध्याय के दूसरे वचन के अंतिम भाग में लिखा है नहमिया के बारे में कि वो अत्यंत डर गया। So, verse 3, and king said to king, may the king live forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tombs, lies waste and its gates are burned with fire? और यहाँ नहमिया ने अपने विषय उनके सामने रखा और कहा कि राजा सदैव जीवित रहे, जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। I was wondering how God turns the tables. Amazing God we have. और हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, वो परिस्थितियों को कैसे बदल देता है। In fact, what Nehemiah should have done, he should have gone, oh king, can you please grant my request? If it is okay with you, I would like to tell something. I have some problem. I wanted to attend that problem. Will you please help me? Something like that he should plead, isn't it? और यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा के सामने जब वो ऐसा कोई पूछे तो लोग बोलते कि हाँ राजा, मैं तो बहुत परेशानी में हूँ और आप मेरी समस्या को समझे। ऐसा कोई भी व्यक्ति राजा को खुश करने के लिए ऐसा बोल सकते थे, लेकिन नहमिया ने यहाँ पे ऐसा नहीं कहा। He just went there. King himself asked a question, why are you so sad? और यहाँ सीधा ऐसा बात हुआ है जिसमें राजा ने उसको देख के कहा कि क्यों आप दुखी क्यों हैं। Immediately, how Nehemiah took the advantage of the situation, immediately comes out with the situation. और यहाँ देखते हैं कि तुरंत राजा के ऐसे सवाल करते ही नहमिया ने तुरंत अपनी परिस्थितियों के विषय वहां पे उत्तर दे दिया। He says, why is your face sad since you are not sick? And then he says, may the king live forever. Why should my face not be sad when my city and the place of my father's tomb lies waste and its gates are burned with fire? और राजा ने जैसे ही कहा, तू तो रोगी नहीं है तो तेरा मुंह क्यों उतरा है?
तो नहम्याह ने उत्तर दिया कि राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे। Don't you think that God is answering the prayer of Nehemiah? क्या आप यहाँ पे नहीं सोच पा रहे हैं कि परमेश्वर जो है राजा नहम्याह की प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं। That's the thing. Instead of begging before kings, we better go to the King of Kings. और यहाँ पे एक चीज हम समझना है कि राजा से कुछ कहने से पहले राजाओं के राजा अर्थात परमेश्वर के सामने कुछ मांगना अच्छा है। I like Brother Buxing, I have learned that one lesson from the servant of God. This man of God, he says, no, I will not beg anyone. I will not request anyone. I will not let know my problems to anyone. I will go to God. I will pour my heart there. Let God move people and let God accomplish his purposes. I love that. I'm simply following that most of my life, that's my testimony as well. और मैंने परमेश्वर के दास बख्शी से सीखा है कि कैसे वो हमेशा कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी विषय होने से हमें सीधे परमेश्वर के पास जाना चाहिए। वो परमेश्वर ही है जो परिस्थितियों को बनाएगा, लोगों के हृदय को बदलेगा और परिस्थितियों को मोड़ेगा। हमें इसी प्रकार विश्वास होना चाहिए और मनुष्य से बढ़कर हमें परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में जाना चाहिए। मैंने उनसे अध्ययन सीखा है। That is the song of David as well. David says, I don't depend upon the strengths of the horses. I don't look for the people. I go to God. And you have to enjoy Psalms. I tell you, my dear brothers, sisters, I don't know whether you know the taste and richness of Psalms. I am thoroughly enjoying. You go to Psalms, you will get amazing picture how to live life on the face of the earth. और प्रियो, मैं आपसे जरूर कहूंगा दाऊद के विषय में जो उन्होंने भजन संहिता लिखा हुआ है कि किस प्रकार कहता है कि मैं तो किसी घोड़े से नहीं जीता हूँ, मैं लोगों की ओर नहीं देखता हूँ, परंतु मैं अपने परमेश्वर की ओर निहारता हूँ। और भजन संहिता आप पढ़ेंगे प्रियो, बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। उसके स्वाद को चखिए, उसके धन को जानिए जो उसमें छुपा हुआ है, ताकि आप अपने जीवन में उस चित्र को देखें जिसके द्वारा आप सीख कर इस दुनिया में एक अच्छे रूप में आप जीवन को जी सकें। When we pray what we are supposed to pray, God moves the hearts of the king because Proverbs chapter 21, verse 1 says, the hearts of kings are there in the hand of God. God can turn over wherever he wants it. और हमें जब प्रार्थना करना है वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर राजाओं के मन को अपने नियंत्रण में रखता है। जैसा कि हम नीति वचन 21 के 1 में देखते हैं कि वो परमेश्वर ही है जो राजाओं के मन को नालियों के समान मोड़ देता है और जिधर चाहे उधर वो मोड़ देता है। You see how God is moving this king? King himself asks, why your face looks to be very sad? Are you sick? और यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर राजाओं के मन को कैसे मोड़ता है। यहाँ पे राजा खुद ही कह रहा है कि तू उदास क्यों है, क्या तू रोगी है। Then he says, what to do? My father's, the city, the place of my father's tombs lies waste and its gates are burned with fire. Then naturally, I'm moved and I'm really not happy. I'm hurt. I'm praying to God what I should do for it. और यहाँ पे नेहमिया ने तुरंत उत्तर दिया राजा से कि जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। And verse 4 is an amazing verse. Then king said to me, what do you request? तब हम यह देखते हैं दूसरे अध्याय के चौथे वचन में कितना अच्छा एक उत्तर हम देखते हैं कि राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है। Please see carefully. Nehemiah never asked, I want this. Will you please grant my request? और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नेहमिया ने ये नहीं कहा था कि मुझे ये चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। Nehemiah prayed for about 4 months, fasting and prayer, weeping and wailing, and God responded through the king. King himself is asking, what is your request? और यहाँ देख रहे हैं पिछले 4 महीने से नेहमिया प्रार्थना कर रहा है और नेहमिया की उपवास और प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर दिया है और राजा स्वयं पूछ रहा है कि तू क्या मांगता है। Another interesting statement in the second part of verse 4, chapter 2. So I prayed to the God of heaven. और चौथे अध्याय के दूसरे भाग में महत्वपूर्ण बात लिखा है, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। King asked a question, king is waiting for the reply.
यहाँ पे राजा ने एक सवाल पूछा और राजा उस उत्तर की इंतजार में है। Do you expect king to wait for the reply of Nehemiah? आप क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि राजा ने जो सवाल पूछा उसके लिए उसको नेहमिया का उत्तर पाने के लिए इंतजार करना चाहिए? Never, never. It can never happen. Immediately Nehemiah has to answer. और ऐसा हम कभी नहीं सोच सकते, नेहमिया को तुरंत उत्तर देना चाहिए। But here it is said that so I pray to the God of heaven. यहाँ लिखा है, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना किया। I believe what I understand is Nehemiah also learned how to pray just within a second or two. और इसका मतलब है कि यहाँ पे हम एक चीज समझ सकते हैं कि नेहमिया ने बहुत जल्दी सीख जाता था कि कैसे प्रार्थना करना है, और वो लगभग समय के 1-2 सेकंड में ही वो प्रार्थना करता था। Nehemiah knew how to pray long prayers. Nehemiah knew how to pray shortest prayers. और नेहमिया लंबी प्रार्थना करना भी जानता था, और नेहमिया छोटी प्रार्थना करना भी जानता था। Many people don't have this balance. और कई बार लोग जो हैं इस संतुलन को बनाए नहीं रखते हैं। Sometimes, I think I heard someone saying, someone went to the railway station to send off his friend. और क्या हम किसी ने कहा है, बताया है कि कोई एक व्यक्ति थे जो अपने मित्र को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे, His friend asked him to pray. और उन्होंने अपने मित्र से कहा कि इसके लिए आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। He started praying. और उन्होंने प्रार्थना शुरू किया, Train went away. और इतना समय तक प्रार्थना करते रहा कि ट्रेन चला गया। No, never do that. हमें ऐसा नहीं करना है। When you go to hospital, और जब हम अस्पताल जाते हैं, when you pray for the sickly person, don't pray long prayers. और जब हम रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वहाँ बहुत लंबी प्रार्थना नहीं करना है। In Ecclesiastes chapter 5, King Solomon says, when you go to King of Kings, please remember you are in the presence of King of Kings. Your words must be as brief as possible. और सबोपदेशक की किताब अध्याय 5 उसमें सुलेमान कहते हैं कि जब आप राजाओं के राजा की उपस्थिति में जाते हैं तो बहुत सावधानी के साथ चलें, और आपके जो कहे हुए शब्द हैं वो बहुत थोड़े होने चाहिए। The lesson what we learned here is we should know when to pray long prayers. We should also know when to pray short prayers. और यहाँ हम ये बात सीख रहे हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि कब हमें छोटी प्रार्थना करनी है और कब हमें बड़ी प्रार्थना करनी है। And then he says from verse 5 onwards, and I said to the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, I ask that you send me to Judah, to the city of my father's tombs, that I may rebuild it. और 5वें वचन में वो इस प्रकार राजा से कहते हैं, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। A leader not only has call, not only intercedes, but at the appropriate time, he knows how to react to the situation. और एक अगुवे को ना केवल बुलाहट होती है, ना केवल उसे मध्यस्थता करनी है, परंतु एक अगुवे को सही समय में प्रतिक्रिया देना भी आना चाहिए। I believe in those 4 months period of intercessory time, he planned, he organized, he envisioned what he's supposed to do. And if he has to do what are all the needs, how it has to be done, all strategy, he must have had a big plan. He had a vision, and that he has to plan and put it in proper shape, how to do, when to do things that we call it as a mission, and then he must have set goals as well. और हम देखते हैं कि लगभग 4 वर्षों का यह मध्यस्थता का काल था, जब नहमिया एक तैयारी कर रहे थे और अपनी योजना बना रहे थे कि हमें क्या करना है आगे, और एक बड़ी व्यवस्थित योजना में थे कि कब कैसे करना है और क्या करना है। Then you may ask me, brother, where did you find base for all the things which you are speaking? और हम एक चीज पूछ सकते हैं कि जो कुछ आप कहने जा रहे हैं, क्या उसके लिए आपने कुछ व्यवस्थित योजना बनाई है? Yeah, no, you may ask me on what basis you are saying all these things. और आप मुझसे ये कह सकते हैं कि मैं किस आधार पर ये सारी बातें आपको सिखा रहा हूँ। When we read verse 6, then we will understand. Then king said to me, the queen also sitting beside him,
How long will your journey be? And when will you return? और जैसे कि 6 वचन में लिखा है, तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? He should have all statistics. Otherwise, he cannot say that, King, please give me time. I will calculate. I'll get back to you and then I'll submit all those things. He cannot say with king like that. और जरूर यहाँ पे नहम्याह ने कुछ योजनाएं बनाई होगी, तभी तो वो राजा के सामने बात कर सकता है। नहीं तो वो राजा के सामने ऐसा कहेगा, कैसे कहेगा कि राजा मुझे थोड़ा सा समय दीजिए ताकि मैं आपको बता पाऊं बाद में। He's a leader. When king is asking, he should take the advantage of the opportunity and immediately have to answer. और यहाँ अगुवे को चाहिए कि जब उसे अवसर मिला है कि वो अपनी बातों को, परिस्थितियों को बता सके, तो उसे तुरंत सब तैयारी के साथ रहना चाहिए। He is ready with the statistics. और वो अपनी पूरी योजना के साथ में पूरी जो जोड़ तोड़ है उसके साथ में वो तैयार था। He knows how to do the math, और वो, उसे मालूम था कि उसे कैसे यात्रा का जो है कल पूरी जो, जाऊंगा मैं बाटा में। हाँ mathematics. और रात पूरी में जो यात्रा की गणित है मैं रात को जाऊंगा, साढ़े सुबह पहुंचूंगा मैं। Brother Silas, will you please keep it on mute? Okay. So a leader is ready with the statistics. और एक लीडर को पूरी गणित के साथ में, तैयारी के साथ में रहना चाहिए। That's the reason why when king asked, immediately he gave his plan. और जैसे इसी कारण ही ऐसा हुआ कि राजा ने जैसे ही उसे कहा, उन्होंने तुरंत अपना विषय राजा के सामने रख दिया। Planning is possible only when there is a vision. When there is a vision, and then he planned, he had a strategy, he put them all in proper order and shape, and that is the mission. और जब कोई व्यक्ति कुछ योजना बनाता है, उसके लिए एक विशेष दर्शन होना चाहिए, और उस दर्शन को पूरा करने के लिए कुछ कार्य योजना होना चाहिए, और तभी वो अपने कार्यों को पूरा कर सकता है। Actually, if we have to discuss about vision, mission, goals, I have to take a lot of time. I'm precisely trying to brief it so that we will complete this book by this day. और जब हम दर्शन के बारे में, योजना के बारे में और अपने लक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए सिखाने के लिए बहुत सारा समय चाहिए, परंतु मैं आपको थोड़े शब्दों में बता रहा हूँ। So mission means what to do, how to do, what are all the needs, and what's the package. It's all the package. So that's a mission. If mission has to be known, there ought to be vision. Without vision, mission is not possible. और दर्शन का मतलब होता है कि क्या करना है, और मिशन का मतलब ही होता है कि कैसे करना है, और उसके लिए क्या चीजें जरूरी है उससे दर्शन को पूरा करने के लिए। तो अगर मिशन नहीं होगा तो दर्शन भी पूरा नहीं हो सकता। Maybe some of you find difficult to understand. Let me explain. आपके लिए कुछ बातें कठिन हो सकता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। Suppose you want to build a house, मान लीजिए कि आपको एक घर बनाना है, or else better say you have to perform marriage of your daughter. और मान लीजिए एक और दूसरा उदाहरण कि आपको अपनी बेटी की शादी करना है, Then what you should do? तो आप क्या करेंगे? You have to take pen and paper सबसे पहले आप एक पेन और कागज लेंगे, and then write down what are all the things to be done. तब आप लिखेंगे कि मुझे क्या क्या करना है। And step 1, step 2, step 3, it all begins with the invitation, wedding card invitation, and then function palace, and then whom to invite, how many people we have to invite, what should be the menu, and what should be the furniture order, what should be the purchases to be done, who should do what, and what's the budget. Everything you need to, it takes a lot of time. Sometimes we may miss it, but as we keep reviewing and sitting with the family and discussing, we'll be finding. और जैसे हम जानते हैं कि जब हम पेन कागज लेके बैठ जाएंगे कि हमारी बेटी की शादी के लिए हमें क्या करना है, तब हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 अलग अलग क्रम में कि हम क्या करते जाएंगे, कि हम उसके लिए आमंत्रण पत्र छपवाएंगे, और कौन सी जगह पे शादी होगी, कितने लोग आएंगे, मेनू में क्या बनेगा, फर्नीचर कैसा रहेगा, खरीदारी कौन करेगा, और किस प्रकार का बजट आएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम परिवार के साथ बैठ कर ऐसे निर्णय करके लिखते हैं। This man, Nehemiah, since he's a leader, he planned all these things all within these four months, and then he's ready with the statistics. He believed the Lord so much that God is going to answer his prayer and king is going to move.
और नेहमिया इन सब चीजों की तैयारी पिछले 4 महीने से उपवास प्रार्थना के द्वारा कर रहे थे। और वो जान रहे थे कि जब मैं प्रार्थना करके रहूंगा तो परमेश्वर जरूर राजा के मन को बदलेंगे और मेरे कार्यों को पूरा करेंगे। And verse 7, he is ready with the statistics. And so he is saying, furthermore, I said to the king, if it pleases the king, let us be given to me for the governors of the region beyond the river, that they must permit me to pass through till I come to Judah, and a letter to Asaph, the keeper of the king's forest, that he may give me timber to make beams for the gates of the citadel, which pertains to the temple, to the city wall, and for the house that I would occupy. And the king granted them to me uh, according to the good hand of my God upon me. और यहाँ पे लिखा है वचन 7 के आगे हम पढ़ सकते हैं। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी कि इस आशय की एक चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और सरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर। Yeah. Hello? यस अंकल, कंटिन्यू प्लीज। I missed the communication. Secondly, planning. First intercession and then planning, because he had a call and he was man of prayer, and then he had a planning. So now ready with the statistics is he asked the king and the king granted. और यहाँ हम देखते हैं कि जो एक प्रार्थना करने वाला अगुआ होता है वो एक योजना बनाता है। जब वो मध्यस्थता करता है उसके बाद वो एक कार्य योजना बनाता है, और उस कार्य योजना में उसके पास पूरी गणित की तैयारी होती है। And then he comes to the on-site, we call technically on-site. He comes to Jerusalem. ऑन साइट। Normally on-site, technically the employees, the place where they have to really work, that is called on-site. ओके। He comes to फिर वो, Jerusalem. यस अंकल, और उसके बाद वो अपने कार्य की जगह पे पहुंच गया जो कि यरूशलेम जहाँ उसे जाना था। आपने खुद के वो वहाँ पे सर्वेक्षण के लिए वहाँ पहुंच गया। And verse 11 and 12. So I came to Jerusalem and was there 3 days. Then I rose in the night, I and a few men with me. I told no one what my God had put in my heart to do at Jerusalem, nor was there any animal with me except the one on which I rode. और हम देखते हैं कि जो उन्होंने व्यक्तिगत सर्वे किया उसके लिए वहाँ वो यरूशलेम के उस स्थान पे पहुंचे, और वहाँ 3 दिन तक रह, लिखा है। और 12वें वचन में लिखा है, जब मैं थोड़े पुरुष को लेकर रात को उठा तब मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। So he heard the news from his friends. He reacted. He came there. There he says in verse 11, he was there for 3 days. I believe those 3 days he must have spent time with God privately. और वो अपने दोस्तों से, मित्रों से सुन चुके थे कि यरूशलेम की क्या दशा है, और वे 4 महीने तक प्रार्थना करते रहे। और फिर जब बाद में यरूशलेम पहुंचे तो वहाँ लिखा है कि 3 दिन तक रहे। इसका मतलब है वहां पे जरूर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने में समय बिताए होंगे। And then from there, he had a private and personal survey. उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पे जरूर उन्होंने एक व्यक्तिगत गुप्त रीति से एक सर्वेक्षण जरूर किया होगा। Not many wise leaders will simply follow someone. Normally what happens, a big boss, he will have some pets. Whatever they say, boss will straight away execute. They'll believe certain hands, under them, and whatever they say according to that plan, they take it granted. और कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति की सलाह में जैसे ही वो उन्हें सलाह देते हैं उसे वो मान लेते हैं और कहते हैं कि चलो हाँ ऐसा कर लेना चाहिए। Here Nehemiah, what he did was, he also surveyed by himself, personally, privately, without the notice of any other.
और यहाँ लिखा है कि जो नेहमिया ने ऐसा नहीं किया, परंतु उन्होंने व्यक्तिगत रूप रीति से, गुप्त रीति से, बिना किसी को बताए उन सब चीजों का सर्वेक्षण किया था। Because the strategy what he had, because the plan what he had, does it really suits? And so he made a personal survey instead of depending upon, he did all that by depending upon somebody's data. Now he personally surveys. A real leader will have a personal survey, a private survey. Don't just depend upon people's advocacy or people's suggestions. और हम यहाँ देखते हैं कि नेहमिया ने जो कार्य योजना बनाई थी, उसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाके गुप्त रीति से सर्वेक्षण किया था, ताकि वो उसकी विषयों को खुद स्वयं जान सके। इसलिए कि अगुवे को अपने सेवा में व्यक्तिगत रूप से, गुप्त रीति से खुद जाकर सारी सर्वेक्षण करनी चाहिए, चीजों को और परिस्थितियों को देखना चाहिए, और केवल दूसरों की बातों को सुन के कार्य नहीं करना चाहिए। And then verse 17 and 18. Then I said to them, you see the distress that we are in, how Jerusalem lies waste and its gates are burnt with fire. Come, let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer be a reproach. And I told them of the hand of my God, which has been good upon me, and also the king's words that he had spoken to me. So they said, let us rise up and build. Then they set their hands to this good work. और दूसरे अध्याय के 17-18 में लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की सरपनाह को बनाएं, कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई, और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए ही आओ बांध लिया। A good leader will sell his vision to others. एक अच्छा अगुवा जो होता है, वो जरूर अपनी योजना को, अपने दर्शन को दूसरों के साथ बांटता है। So he shared, how the Lord had put the burden in his heart, how king also supported because God was upon him. और चूंकि परमेश्वर का हाथ उस पर था, इसलिए नहम्याह ने जो उसके जीवन में बोझ था, उसको दूसरों के साथ भी साझा किया। He was saying, why should we be put to shame? Why should we be put to derision? Why should people tease us? Why not we build our walls which were burnt with fire? And God is with us. And he encouraged them. And they understood the burden of Nehemiah and they became partners in the vision given by God to Nehemiah. और हम देखते हैं कि नेहम्याह ने लोगों को कहा कि क्यों हमें लज्जित होना पड़े, क्यों लोग हमारी नामधराई करे कि हमारे फाटक जला हुआ है, टूट गया है, उजाड़ पड़ा है यरूशलेम, क्यों ना हम सब मिलकर इसे बनाएं। इस प्रकार की बातें कहकर नेहम्याह ने लोगों को तैयार किया, और लोग उसके जीवन के बोझ को समझ पाए, और नेहम्याह के दर्शन के साथ में वे लोग भी मिलकर काम करने के लिए तैयार हुए। My dear brothers and sisters, let me be very frank. It is not easy to work with people. और मैं आपको एक चीज खुल के बता दूं कि लोगों के साथ मिलकर काम करना आसान नहीं है। I was also a leader in the central government, at least for more than 12 years or so. I tell you, it is easy to work with missions, but it is not easy to work with people. Very, very difficult. और मैं सरकारी कार्यालयों में काम करने का मेरा 12 वर्ष का अनुभव है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि लोगों के साथ काम करना बहुत कठिन है, जबकि वर्क मिशन में कार्य करना हमारे लिए कुछ आसान भी है। In the central government, I worked both as non-gazetted officer and also worked as gazetted officer. और चूंकि जैसे मैं जब सरकारी नौकरी किया था, तो उसमें मैं गेजेटेड और नॉन गेजेटेड अधिकारी दोनों के रूप में कार्य किया था। So I was in charge of a unit. Few people were reporting me, and I tell you, I had to face the music of union threatenings by the unions because I never used to take 1 rupee as corruption or क्या बोलते हैं उसको I never used to take 1 rupee, but I never used to give 1 rupee to my higher official. I never used to share anything to my officer lawyer. So I had to face a lot of music. और चूंकि मैं अपने यूनियन का इंचार्ज था, इसलिए बहुत सारी बातें हैं जो मुझे यूनियन से सुनाई देती थी,
और यूनियन से मुझे बहुत खतरा भी महसूस होता था कई बार। लेकिन मैंने कभी भी भ्रष्टाचार नहीं किया, कभी किसी काम के लिए घूस नहीं लिया। ना ही मैंने अपने अधिकारियों को दिया और ना ही मेरे साथ रहने वाले लोगों को मैंने कभी घूस दिया। I faced a lot of challenges. और इसलिए मुझे बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ा। With little experience, what I had, I'm telling you, it is not easy to build a team. और इसलिए मैं आपको एक चीज बता दूं प्रियो, कि एक टीम का निर्माण करना आसान नहीं होता है। A good leader will make people partners in his vision and build a team. और एक अच्छा जो अगुवा होता है, वे अपने दर्शन में लोगों को अपना हिस्सेदार बनाता है, ताकि वो अपना कार्य पूरा कर सके। And they started building. और यहाँ लिखा है तब उन्होंने बनाना शुरू किया। But immediately, verses 19 and 20 says that there was an opposition. और तुरंत यहाँ लिखा है 19 और 20 वचन में कि उनका विरोध शुरू हो गया। When Sanballat and Sanballat the Horonite, Tobiah the Ammonite official, and Geshem the Arab heard of it, they laughed at us and despised us and said, "What is this thing that you are doing? Will you rebel against the king?" So I answered them and said to them, "The God of heaven himself will prosper us. Therefore, we, his servants, will rise and build, but you have no heritage or right or memorial in Jerusalem." और 19 और 20 वचन में ऐसा लिखा है, यह सुनकर होरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेम नामक एक अरबी हमें ठट्ठों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उसको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग है, ना हक और ना स्मारक है। As we serve as leaders, I tell you, it is not an easy job. Definitely, we will have opposition. Without opposition, there is no ministry and there is no service. और हम देखते हैं प्रियो कि जो एक लीडर होता है, जब भी वो कोई कार्य करता है किसी योजना में, तो उसका विरोध जरूर होता है। बिना विरोध के कोई भी जो लीडर है, अगुवा है, वो सेवा नहीं कर सकता, उसकी सेवकाई नहीं हो सकती। As servants of God, what we normally expect is we want peaceful journey. My dear brothers and sisters, we will never have peaceful journey in our ministry. Please remember that. और हमें लगता है कि एक अगुवे की जो यात्रा है वो शांतिपूर्ण होती होगी, परंतु मैं आपको एक चीज बता दूं प्रियो कि एक अगुवे की जो कई बार कार्य जो आगे जो यात्रा होती है वो शांतिपूर्ण नहीं होती है। I'm not mean to say that every time we'll have trouble, but we'll have both ups and downs. We'll have times of joys and times of challenges and times of discouragements. And, it's like valleys and mountains experience. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्याएं हर समय रहेंगी, परंतु कभी खुशी और कभी दुख की परिस्थितियां रहेंगी। कभी ऊंचा उठने की, कभी गिरने की परिस्थिति रहेगी। अर्थात एक खाई और पहाड़ दोनों की स्थिति मिलकर सामने दिखेगी। What I understand is from Sanballat and Tobiah verses 19 and 20, they wanted to be partners with Nehemiah. और यह 19 और 20 वचन को पढ़ने से इतना समझ में आता है कि जो संबलत और तोबिया जैसे लोग थे, ये लोग नेहमिया के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे थे। Nehemiah says, "No, you cannot be partner with us. Only those who shares the vision which God has given, they only must be the partners, and no other person can be partners." और नेहमिया ने इन्हें कहा कि जिसे परमेश्वर ने साथ रखने का दर्शन दिया है, केवल उन्हीं लोग हमारे साथ मिलके काम करेंगे, आप हमारे साथ मिलके काम नहीं कर सकते। If you carefully go through the book of Nehemiah, you understand how much trouble these, Sanballat and Tobiah brought, Geshem. They brought lots of trouble, but Nehemiah stood firm. He never feared, he never scared, and he faced them, and he did his job. और यहाँ देखते हैं कि जब नेहमिया की पुस्तक आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये जो संबलत है, तोबिया है और गेशेम नामक व्यक्ति ने उनका बहुत विरोध किया, परंतु हम देखते हैं कि इन तीनों के सामने नेहमिया बड़ी हियाव के साथ खड़ा रहा और उसके जीवन में इनके लिए कोई भी डर ना था। We find it in verses 1 to 3 from chapter 4, 1 to 3. But it so happened when Sanballat heard that we are rebuilding the wall,
that he was furious and very indignant and mocked the Jews. And he spoke before the brethren and army of Samaria and said, "What are these feeble Jews doing? Will they fortify themselves? Will they offer sacrifices? Will they complete it in a day? Will they revive the stones from the heaps of rubbish, stones they are burnt?" So now Tobiah the Ammonite, and besides, he said, whatever they build, even if a fox goes on it, it will break down their stone wall. और निम्न 4 अध्याय उसका 1 से 3 में लिखा है, जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्ठे में उड़ाने लगा और अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर से नए सिरे से बनाएंगे? उनके पास अम्मोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की सरपनाह को तोड़ देगा। So I have kept, these references here. You please go through. You will understand what kind of problems Nehemiah faced. Yes, problems we cannot avoid, conflicts we cannot avoid, challenges we cannot avoid, but stand firm and God will give us victory. और यहाँ पे आप वचन के रेफरेंस को देख सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारा विरोध और कई सारी परिस्थितियां नेहमिया को सामना करना पड़ा, परंतु हमें एक चीज सीखना है कि चाहे परिस्थितियों कितने भी विरोध हो, कुछ भी कठिनाइयां हमारे सामने आए, हमें स्थिर होकर दृढ़ता के साथ खड़े रहना है। And then we find in the chapter 3 verses 1 to 32, so he delegated authority. He did not do everything by himself, but he shared the ministry, he shared the work. He so wisely shared that, every person must build the wall before their house, in front of their house. और उसके बाद हम तीसरे अध्याय के 1 से 32 तक देखते हैं कि नेहमिया ने जितनी भी अपने जो कार्य का जो अधिकार क्षेत्र था, उसको, उसके प्रतिनिधित्व को लोगों को दिया और कहा कि आपको अपने अपने हिस्से का कार्य पूरा करना है। इसलिए उन्होंने सभी लोगों को उनके कार्यों को बांट दिया। So you see the verses, chapter 3 verse 10 and chapter 3 verse 23 and chapter 3 verse 28 to 30, you understand how wisely he shared the responsibilities to the people to build the wall, they build it. Delegated authority. और हम देखते हैं 10 वचन, 23 वचन और 28 से 30 वचन के बीच में कि किस प्रकार पूर्ण रीति से जो नेहमिया ने समर्पण के साथ में अपने इस कार्य क्षेत्र को लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए बांट दिया। So we need to read chapter 4. Brother, you please read chapter 4 verse 17. Verse 17 onwards. Chapter 4 verse 17. I think I will first read. Chapter 4 verse 17. Those who build on the wall and those who carried burdens loaded themselves so that with one hand they worked at construction and with the other hand a weapon. Every one of the builders had his sword girded at his side, and as he built, and the one who sounded the trumpet was besides me. 4 अध्याय के 17 और 18 में लिखा है, सरपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूकने वाला मेरे पास रहता था। So when there was opposition, how he handled? With one hand a weapon and with the other hand a tool. और जब उनके सामने बड़ा विरोध आया तो उन्होंने कैसे सामना किया? लिखा है, एक हाथ में हथियार रखते थे और दूसरे हाथ में वो काम करने का औजार रखते थे। The unfortunate situation these days, we will have weapon in both hands or we will have tools on both hands. So either we keep building, some opposition, stop there, or fight, keep fighting. Here what he did was, with one hand there is a tool to build,
with the other hand, there is a weapon to fight. और आज के समय में हम ऐसा देखते हैं कि कई बार लोग दोनों हाथ में औजार लेके रहते हैं, या तो दोनों हाथ में हथियार लिए रहते हैं, अर्थात या तो वो काम करते रहते हैं या तो वो पूरी रीति से विरोध में केवल लड़ते रहते हैं। परंतु हमें ऐसा नहीं करना है, परंतु हमें एक हाथ में हथियार और दूसरे हाथ में अपने औजार रखना है। And he kept people to be vigilant to get the alarm from the enemy strategy. He planned to keep somebody to keep watching, the strategies of enemy so that they'll be alarmed. So in that way, what Nehemiah did, within 52 days, his mission was accomplished. This is what we find in chapter 6 and verse 15. और 6 अध्याय के 15 वचन में हमें पता चलता है कि कैसे 52 दिन में ये सरपनाह के बनाने का काम पूरा हो गया। जैसे नहम्याह ने अपने लोगों को सिखाया था कि किस प्रकार कुछ लोग शत्रु की जो योजना को ध्यान से देखते रहना है और तुरही फूंकने के लिए तैयार रहना है, ताकि हम सचेत होकर इस काम को कर सकें। Chapter 6, verse 15. So the wall was finished on the 25th day of Elul in 52 days. Record break. और 6 अध्याय के 15 वचन में लिखा है, एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। It was not easy. There was discouragement. Chapter 4, और ये verses बहुत 1 to 3. और ये बहुत आसान नहीं था, इसमें बहुत सारी निराशा का समय आया, जो हम 4 अध्याय का 1 से 3 में देखते हैं। They threatened Nehemiah that he is going to be killed. Better you go and hide. He says, no, man of this kind, how can I go and hide? No, I will not hide. I will not run away. He stood firm courageously in the name of the Lord. और 6 अध्याय के 10 से 14 के बीच में देखते हैं कि नहम्याह को बहुत खतरा था, और लोग उनसे कह रहे थे कि आपको बहुत खतरा है, आप जाइए और छुप जाइए। परंतु नहम्याह ने कहा, नहीं, मुझे किसी से नहीं डरना है, परंतु मैं अपने कार्यों को जरूर पूरा करूंगा। The four things I kept it on the slide. He prayed, he kept watch day and night, he did not stop working, and there was a sword in one hand, the tool in another hand. He completed the mission within 52 days. और यहाँ मुख्य 4 बिंदु हम देख रहे हैं 4 अध्याय की 9 वचन में कि उन्होंने प्रार्थना किया, 9 वचन में कि उन्होंने दिन और रात वो ध्यान से देखते रहे। 16 और 17 वचन में हम देखते हैं कि उन्होंने अपना कार्य बंद नहीं किया, और 16 और 17 वचन में ये भी देखते हैं कि उनके एक हाथ में औजार और दूसरे हाथ में हथियार था। और इसका जो हम 7वें भाग में देख रहे हैं 6 के 15 में, कि उन्होंने 52 दिन में अपनी योजना को पूरी कर लिया। They committedly did the work so much so that they did not even change the dress. और उन्होंने इतना समर्पण था उनके कामों में कि उन्होंने अपने कार्यों का कोई भी प्रतिरूप नहीं बदला। They made the shifts day and nights, and within 52 days they have completed. और उन्होंने दिन और रात काम करने का अलग अलग एक शिफ्ट को बना के रखा था, और इसके कारण वो 52 दिन उन्होंने कार्य को पूरा कर लिया। And chapter 8, chapter 5, verses 8 to 10, there were some problems from inside. Not only problems from outside, problems from inside. और 5वें अध्याय के 8 से 10 के बीच में हम देखेंगे कि ना केवल उन्हें बाहर से समस्या थी, परंतु उन्हें भीतर से भी समस्या थी। Let me read it for you, chapter 5, verses 8 to 10. And I said to them, according to our ability, we have redeemed our Jewish brethren who were sold to the nations. Now, indeed, will you even sell your brethren? Or should they sold to us? Then they were silenced and found nothing to say. Then I said, what are you doing? Is not good. Should you not walk in the fear of our God because of the reproach of the nations, our enemies? I also, with my brethren and my servants, am lending them money and grain, and please let us stop this usury. और 5 अध्याय के 8 से 10 में हम देखते हैं, और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे दाम लेकर छुड़ाया है। फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके। फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो अच्छा नहीं है। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना न चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जाति हैं वे हमारी नामधराई ना करें? मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ दें। There is some problem inside the family because of some of the members in the team
So that problem is also Nehemiah as a leader handled it with love and sharing. और हम देखते हैं कि बड़े प्रेम के साथ और बांटने की एक प्रक्रिया के द्वारा एक अगुए नेहमिया ने यहाँ भी जो आई समस्या थी उसको निपटारा किया, क्योंकि इसकी टीम में कुछ ऐसे लोग थे जिनके परिवार में भी भीतरी समस्याएं पैदा होने लगी। Problem from outside, problem from inside. तो हम यहाँ देखते हैं समस्या बाहर से भी थी और अंदर से भी थी। And we find there are certain spiritual concerns. He invited Ezra, and the word of God was read in the open squares, and people, were saturated, and there was a joy of the Lord, which has become their strength. और 8वें अध्याय में देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वे सब एक साथ इकट्ठा हुए और उन्हें व्यवस्था की पुस्तक के बारे में उसे पढ़ाया गया और उनको सबको व्यवस्था अच्छी रीति से समझाई गई और एजरा ने भी उन्हें उस व्यवस्था की किताब को अच्छी रीति से वर्णन किया और इस प्रकार वो उसको समझ गए और उन्हें कहा गया कि आप भोजन सामग्रियों को आज एक साथ लेकर आइए, क्योंकि आज का दिन प्रभु का लिए पवित्र दिन है, इसलिए उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। It's a beautiful book, chapter 8, I tell you, and how they studied the word of God. The word of God was explained to them, how the people responded, how the people repented, and they wept so much so that leaders had to tell them, no, stop repenting, celebrate, begin to celebrate. Chapter 8, verse 1. This is the day, a holy day unto the Lord. The joy of the Lord is our strength, and they encouraged them. और 8 अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है जिसमें लिखा है कि वे कैसे वचन की व्यवस्था को पढ़ते रहे, उसके बाद समझते भी रहे और वे उन्होंने प्रायश्चित किया उसके वचनों को सुनकर और वे बहुत ही प्रायश्चित करके रोने लगे। लेकिन नेहमिया और एजरा ने उन्हें बताया कि आप रो मत, आप इतना ज्यादा दुखी मत होइए, उदास मत रहिए, परंतु आनंदित रहिए, क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही आपका दृढ़ गढ़ है। And chapter 9, there were few other, concerns, how they confessed and worshiped the Lord their God, and they placed their seal on the document of confession, and they took a vow saying that we will not neglect the house of the Lord our God. और 9वें अध्याय में भी हम देखते हैं कि उन्होंने जो पाप का अंगीकार किया और उन्होंने अपने सभी पापों का अंगीकार परमेश्वर के सामने खड़े होकर किया और उन्होंने परमेश्वर के सामने अंगीकार करने के बाद परमेश्वर हमारा प्रभु है करके उसकी आराधना की और उसके बाद हमने देखा कि वहां पर कुछ जो जो व्यवस्था थी उसको रखा गया ताकि लोग वहां पे उसे पालन कर सके और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर की व्यवस्था को और उसके घर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। It's something wonderful, verse 39. I love to read that verse, chapter 10 and verse 39. Chapter 10 and verse 39. And there, the last portion, we will not neglect the house of our God. और 10 अध्याय के 39 वचन के अंतिम भाग में जो लिखा है, इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे। See the consequence, verse 2, they stood and confessed their sins. Verse 3, they confessed and worshipped the Lord their God. And chapter 10, verse 1, they placed their seal on the document. And finally, they decided that they will not neglect the house of the Lord. और हम देखते हैं कि इस प्रकार 9 अध्याय के 2 वचन में कि उन्होंने किस प्रकार खड़े होकर अपने पापों का अंगीकार किया और 9 अध्याय के 3 वचन में किस प्रकार उन्होंने अपने परमेश्वर की आराधना की अंगीकार करके, 10 अध्याय के 1 वचन में किस प्रकार उन्होंने जितनी भी जो पत्रियां बनाई थी उसके ऊपर उन्होंने छाप लगाई और 39 वचन में हम देखते हैं कि उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम परमेश्वर के भवन को कभी ना छोड़ेंगे। It's all because the joy of the Lord is our strength. और ये सब इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर का जो आनंद है वो हमारा दृढ़ गढ़ है। And chapter 12, verse 27, they have dedicated the wall of Jerusalem. And chapter 12, verse 43, they offered great sacrifices and rejoiced, and God made them rejoice
and great joy. The woman and the children were rejoiced, so that the joy of Jerusalem was heard afar off. और 12 अध्याय उसके 27 वचन में हम देखते हैं कि उन्होंने यरूशलेम की सरपनाह की प्रतिष्ठा की और वहां पे आनंद से गाया और बहुत ही गा गा कर उसकी प्रतिष्ठा की। और उसके 43 वचन में भी हम देखते हैं उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया और यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। So they dedicated the wall which they have built unto the Lord. और जो उन्होंने जो सरपनाह बनाई थी उसका समर्पण किया। So after chapter 12, he went back to his office. Again, he came back after 9 years. And by the time he came, there were certain irregularities about tithing, about keeping of Sabbath, about the mixed marriages that we find in chapter 13. That also he set in order. और उसके बाद जब वो सरपना को बना के जब वो वापस गए और उसके बाद कुछ समय के बाद कार्य करके जब वापस आए, तो उन्होंने फिर से देखा कि कुछ कुछ बातें हैं जिनको व्यवस्था से सुधार करना बहुत जरूरी है, चाहे वो दशवांश के विषय में था या विवाह के विषय में जो कुछ करना था, उस सारे विषय को लेकर उन्होंने आके सुधार किया। As long as leader was there with them, they were all right. When he returned, what happened? Tobiah took a main important place, came inside the house of the Lord. He occupied some of the rooms and started dwelling there. और यहाँ हम देखते हैं कि जब अगुवा अपने स्थान से हट जाता है तो वहां पे कुछ दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि जो तोबिया था वो इस जो इनके बनाए हुए शर्पना के भवन में कुछ भागों को अपने कब्जे में ले लिया और वो उसकी कोठरी में रहकर कुछ चीजों को अपने हिसाब से उपयोग करने लगा। Nehemiah was so zealous, he thrown away all the articles outside. If you read verses 8 to 9, please read, brother, 8 and 9, 13th chapter, 8 and 9. और 13 अध्याय के 8 और 9 में देखेंगे जिसमें नेहम्याह को ये सब बहुत बुरा लगा और उसने सारे इन सब चीजों के सामान को फेंकवा दिया। इससे मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्न बलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। And verse 17, he saturated the problem of Sabbath. During Sabbath day, they were doing business and he stopped it. He said they should honor the Lord on Sabbath day. और 17वें वचन में उन्होंने कहा सबको डांट कर कि तुम लोग क्यों बुराई करते हो और विश्राम के दिन को क्यों अपवित्र करते हो। उन्होंने कहा कि आप विश्राम के दिन को पवित्र रखें। And there were certain mixed marriages that also he settled. Verse 25 says, he struck some of them and pulled their hair. और 25 वचन में हम देखते हैं कि जो विवाह के विषय में जो गड़बड़ियां थी उसको भी उन्होंने सही किया और उसे करने के लिए कुछ को उनको पिटवाना भी पड़ा और उनके बाल को भी नचवाना पड़ा। So he cleansed the house of the Lord and he separated few disorders among the people of God. What a leader Nehemiah is. और नेहम्याह कितना अच्छा हुआ था, उन्होंने परमेश्वर के भवन को शुद्ध भी किया और जो भी विवाह के विषय में कुछ अशुद्धियां थी, विश्राम दिन के पालन करने के विषय में कुछ अशुद्धियां थी, उस सबको सही किया। So let us recap the book of Nehemiah. There are 7 points what we have studied. Intercession, आज हमने planning, personal survey, partnership in his vision, no compromisation when there was opposition, delegated authority, mission completed, all within 52 days. With one hand there is a weapon, the other hand there is a tool. और हम देखते हैं नेहम्याह के जो सारांश को हम देखते हैं। सबसे पहले उनके जो एक मध्यस्थता थी, दूसरा उसके अनुसार वह कार्य योजना बनाते थे, तीसरा उनका व्यक्तिगत एक सर्वेक्षण करने का एक तरीका था, चौथा वे अपने दर्शन को लोगों के साथ बांटते थे, पांचवा वो किसी भी परिस्थिति में विरोधियों के साथ में समझौता नहीं करते थे, छठवां वे अपने अधिकार को प्रतिनिधित्व के रूप में लोगों को बांटते थे और वे सातवां हम देखते हैं कि उन्होंने सब ने मिलकर 52 दिनों में शरपनाह के बनाने का काम पूरा कर लिया, जबकि लोगों के एक हाथ में हथियार था और दूसरे हाथ में औजार था। Opposition from outside, problems within the local family. और यहाँ पे विरोध बाहर से भी था और अंदरूनी परिवारों में भी समस्याएं थी। Nehemiah handled them properly. और नेहमिया ने उन्हें सुंदर तरीके से संभाला।
in chapter 8 and 9 and 10, he invited Ezra, and Ezra read the scriptures to the people, and people confessed, and people made a covenant, and they wrote down the decree and then made a sign on it. और 8 और 9 और 10 अध्याय में हम देखते हैं कि उन्होंने इज़रा को बुलाया, जिन्होंने व्यवस्था को अच्छे से उनको पढ़ के समझाया। वे लोग सब रोने लगे और उन्होंने व्यवस्था के साथ में वाचा को बांधा और उस पर उन्होंने छाप लगवाई They rededicated the wall. और उन्होंने फिर से शहरपनाह को समर्पण किया। He didn't stop there. He went there again. He came back again. और वो उन्होंने बंद नहीं किया, परंतु वो वहां से वापस आए और फिर वहां गए। Again, the temple, many things he had to set right. And then right among the people of God, there was tithing problem, and there was Sabbath keeping problem, and then mixed marriages problem. He handled all those issues. और वहां वापस जाके उन्होंने दशवांश के विषय में, शब्द के दिन के विषय में और मिश्रित विवाह के विषय में जितनी समस्याएं थी उसको हल किया। So we have seen 3 portions. Chapter 1, news he heard, and his response we have seen. And chapter 2 to chapter 12, he had a vision, he had a mission, and he executed according to the goals he set within 52 days. And chapter 13, there were certain disorders. He fixed all of them. और नेहमिया को अध्ययन को हमने 3 भाग में बांटा था। पहले अध्याय में जहां उन्होंने शहरपनाह के विषय में समाचार मिला और प्रतिक्रिया दी। दूसरे भाग में 2 अध्याय से 12 अध्याय के बीच जहां उन्होंने अपने दर्शन को देखा और योजना बनाई और उसको पूरा किया। तीसरे भाग में 13 अध्याय के बीच में 13 अध्याय में जहां उन्होंने समस्याओं को, जो कुछ बातें गलत थी, उसको व्यवस्थित किया। Amazing book, Nehemiah. It is worth reading, for several hours, but I have condensed all these things to the precisely and to concisely. Hope the Lord has blessed us. और नेहमिया की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे अच्छे से समझने के लिए कई घंटों का अध्ययन चाहिए, परंतु हमने इसे संक्षिप्त किया है, बहुत ही उससे छोटे रूप में आपको समझाने की कोशिश की है। परमेश्वर आप सबको अध्ययन के द्वारा आशीष दे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें।